Hello 12th class students. बच्चे today we are going to discuss parallel plate capacitor. In our last video we discussed about the principle of capacitor, right? So today we are going to discuss parallel plate capacitor, its mathematical derivation. So for this we consider a parallel plate capacitor. Plate A, plate B. Plate A is positively charged and the left face of the plate B is negatively charged and the right face is earthed. ठीक है, इसको अर्थ किया है, क्लियर. एंड दीज टू प्लेट्स इज एट अ डिस्टेंस D. ठीक है, D डिस्टेंस है दोनों में. As here it is a positive charge and this is a negative charge, means electric field is set up between these plates. What is that value of electric field? The value of electric field E, it is equals to dV by dr. We do this in our fourth chapter, potential gradient. Electric field as a potential gradient. So we take this expression from potential gradient. E is equals to dV by dr in magnitude. We omit the negative sign. Clear? Now in this case we consider if V is the potential difference, V is the potential difference between two plates, then electric field is किससे इक्वल होगा बच्चे? E is equals to V by D. This is the potential, this is the distance. In this case we consider potential as B and the distance between the two plates as D. So E is equals to V by D. From this we have V is equals to E into D, equation number 1. Clear बच्चे? So now as we know sigma is the surface charge density. ठीक है, पढ़ा है ना पहले surface charge density, charge distributed over the surface charge density. Then we have E is equals to sigma by epsilon naught. This expression we draw in our previous video. E is equals to sigma by epsilon naught. And as we know that sigma, it is surface charge density, means charge per unit area. If area is A is the area of cross section of these plates. So sigma is equals to Q by A. Clear? Put this value of sigma in third equation, means using third in second. Then what will we have? We have E is equals to Q by A epsilon naught. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है, then let this equation is 4. Put this value of E in equation 1. Clear? Put the value of E in equation 1 means using 4 in 1. Then what we have, इसमें पुट करोगे अगर वैल्यू V is equals to Q by A epsilon naught into D. Clear? Now we have to find the capacitance of a parallel plate capacitor, right? If C is the capacitance, if C is the capacitance of parallel plate capacitor, then C is equals to किसके इक्वल होता है बच्चे? C Q by V. ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, देन पुट द वैल्यू ऑफ V. पुट द वैल्यू ऑफ V. V की वैल्यू क्या है? Q by A epsilon naught into D. Let this is equation number 5. So from equation 5 we have, from equation 5 we have C is equals to Q over V की वैल्यू क्या है? Q by A epsilon naught into D. So Q and Q क्या हो जाएगा? कैंसिल. So C की वैल्यू क्या आ जाएगी? A epsilon naught over D. ठीक है, दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor. Now if we place a dielectric, अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो क्या होएगा फिर?
इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इन दैट केस C इट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन बाई D, मतलब अगर मीडियम में प्लेस करते तो हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं ना, ठीक है। एंड एज वी नो एप्सिलॉन इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K, सो C बिकम्स A एप्सिलॉन नॉट K ओवर D। मीन्स कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक में प्लेस कर रहे हैं, किसी मीडियम में प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन प्लेस इन अ मीडियम। क्लियर है बच्चे। देन नेक्स्ट वी हैव द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अगर हमने सर्किट में ड्रॉ करना है कैपेसिटर को, तो उसका सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का, 2 पैरेलल लाइंस। बड़ी छोटी नहीं बनानी है, सेम बनानी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर हम इसमें एरो डाल रहे हैं लाइक दिस एरो रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, वेरिएबल कैपेसिटेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब partially fills the space between the plates. Dielectric slab means basically it is an insulator, but the charge appear on its surface when placed in a electric field. Surface के ऊपर charge appear हो जाता है, ठीक है। So first we consider a parallel plate capacitor. A, B, positive negative charges. This part earthed. A is the area of cross section, and these plates are separated by a distance of D. Then in the previous article we calculate the expression for capacitance. Here we use C naught. This represents when the plates are placed in a vacuum. ठीक है बच्चे, C naught symbol use कर रहे हैं, ठीक है। Then now we place a dielectric slab. When we place a dielectric slab in this, then on this face negative charge appears due to the positive charge on the plate A, and on the other face there is a positive charge due to the negative on this, ठीक है। एंड हेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, पढ़ा है ना हमने पिछले वीडियो में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इफ़ वी कंसिडर E इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो E ले रहे हैं, ठीक है। और E नॉट जो है वो बाकी पार्ट में है, E नॉट जो बच गया है, मतलब D माइनस T। अगर इसकी थिकनेस T है, टोटल डिस्टेंस D है, तो इतना डिस्टेंस क्या होएगा, D माइनस T। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या ले रहे हैं, E नॉट, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। फॉर दिस वी कंसिडर इफ V इज द पोटेंशियल बिटवीन दीज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन V इक्वल्स टू, एज वी नो V इज इक्वल्स टू बच्चे E इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक E है और एक है E नॉट, ठीक है। सो पोटेंशियल कितना होएगा, एक होएगा हमारे पास E इंटू T, ठीक है, रिड्यूस वैल्यू, और इसका जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव T, और एक इज ये डिस्टेंस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, E नॉट। सो साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस E नॉट D माइनस T, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दोनों का सम। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर हो गया और ये वैक्यूम में, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ कैन वी डिफाइन इट, K इज इक्वल्स टू E नोट ओवर E, ऐसे डिफाइन किया था ना, ठीक है। यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट ओवर K, E ऊपर चला गया, K नीचे आ गया, ठीक है। पुट दिस वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन मीन्स 2, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन 1, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन 1, then what we have 2, V is equals to E नॉट ओवर K इंटू T प्लस E नॉट D माइनस T, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, E नॉट कॉमन T बाई K प्लस D माइनस T, ठीक है। और E नॉट की वैल्यू क्या होती है,
ई नॉट की वैल्यू ई नॉट इज इक्वल्स टू किया है ना हमने अभी अभी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो ये वैल्यू जो है क्यू नॉट की वो इसमें पुट कर दो। सो वी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी। वी आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ये होती है हमारे पास कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ठीक है, V की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास दिस मच। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी मीन्स हेयर वी यूज द इक्वेशन 4th। देन व्हाट वी हैव Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट T बाई K प्लस D माइनस T। Q एंड Q क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ में यूजिंग इक्वेशन 4। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C कम्स आउट टू बी A एप्सिलॉन नॉट ओवर ऊपर चला जाएगा ना ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा T बाई के प्लस D माइनस T। ठीक है बच्चे, सो ये है आपकी कैपेसिटेंस। और कई बार आपको ये भी आ जाता है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज हाफ एज द डिस्टेंस। इट मीन्स कि क्या है हमारे पास T की वैल्यू क्या है हमारे पास D बाई 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ T एज D बाई 2 इन दिस। देन वी हैव C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाई 2K प्लस D माइनस D बाई 2। T की जगह पे पुट करना है बेटा D बाई 2। सो D माइनस D बाई 2 क्या हो गया हाफ। ये क्या बन जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाई 2K प्लस D बाई 2। ठीक है, 1 माइनस हाफ और D बाई 2 क्या है कॉमन। सो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाई 2 1 बाई K प्लस 1। और it can also be written as C is equals to 2A epsilon naught K over D 1 plus K। ठीक है, थिकनेस आपको D बाई 4 भी आ सकती है कि what will be the capacitance of a parallel plate capacitor when its thickness is D बाई 4। ठीक है, इसमें एक पार्ट और आ सकता है बच्चे, अगर T हम D के इक्वल पुट कर दें। ये भी स्पेशल केस है इसका कि अगर थिकनेस है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, उस केस में क्या आ जाएगी कैपेसिटेंस हमारे पास C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाई K प्लस D माइनस D। D और D कैंसिल हो जाएगा मीन्स C किसके इक्वल आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K ओवर D। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास है C नॉट के इक्वल। सो C इज इक्वल्स टू C नॉट K। मतलब कि जो कैपेसिटेंस है हमारी वो क्या हो जाती है इंक्रीज जब हम डाइलेक्ट्रिक उसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड। बच्चे नाउ इंस्टेड ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वी प्लेस अ कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब मीन्स कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, सो हेयर वी टेक द पॉजिटिव चार्ज देन ऑन दिस फेस नेगेटिव चार्ज अपीयर। ठीक है, इस फेस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस फेस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पार्ट को क्या कर देंगे हम अर्थ। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास हेयर वी हैव। ठीक है, सो इनसाइड जो कंडक्टिंग स्लैब है बेटा क्योंकि इसमें लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव और इसमें क्या होगी डायरेक्शन ये जो उसके अंदर सेटअप होएगा। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी कैंसिल। वी ऑल्सो डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियोज़। सो हेयर द इनसाइड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, बाकी पार्ट जो है बच्चे वो सेम ही है। ठीक है, वी कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्टेंस D दिस वैल्यू। देन वी प्लेस अ हेयर इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक
वी यूज़ कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर रहे हैं। ई क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, और दिस इज द रिमेनिंग डिस्टेंस। नाउ इफ वी इज द पोटेंशियल, वी जो पोटेंशियल है किसके इक्वल था हमारे पास, ई इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। नाउ एज इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मीन्स ये वैल्यू क्या है, 0 है। सो वी किसके इक्वल रह जाएगी हमारे पास, ई नॉट डी माइनस टी के बाद, ठीक है, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और ई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q by A epsilon naught D minus T. Now if C is the capacitance, then it is Q by V. Put the value of V. We have Q over A epsilon naught D minus T. Q and Q cancel, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल बच जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, ये ओवर में ही है, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, D माइनस टी क्या रह जाएगा नीचे, क्योंकि वो Q के साथ मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर चला जाएगा, D माइनस टी यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर T हम D के इक्वल पुट कर दें फिर क्या होएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये क्या बन गया 0। सो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी उसकी, इनफाइनाइट। कि अगर हम कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर रहे हैं जिसकी थिकनेस सेम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब सॉरी कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस सेम है एज द डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम इनफाइनाइट, ठीक है, कि हम कोई भी चार्ज जो है वो प्लेट को दे सकते हैं और वो हैंडल करेगा। क्लियर है बच्चे। इसको कैसे हम कर सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि जब कंडक्टिंग स्लैब होली फिल कर लेगी स्पेस दोनों प्लेट्स के अंदर, अगर ये पूरे का पूरा अंदर कनेक्ट हो जाएगा आपस में, तो इसका मतलब इसको हमने अर्थिंग भी की रखी है ना, तो सारे का सारा चार्ज क्या होएगा, अर्थ के नीचे फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ए प्लेट भी फिर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इट अपीयर्स के कैपेसिटेंस जो है वो क्या बन गई है, इनफाइनाइट, कि हम उसको चार्ज प्रोवाइड करते जा रहे हैं और वो उसको हैंडल करी जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो अर्थिंग जा रही है साथ में, ठीक है। थैंक यू बच्चे।